Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about transition state theory. So transition state theory का मतलब क्या है कि जो reactants हैं वो react करेंगे और वो एक transition state के undergo pass होंगे. That transition state is also known as activated complex and its energy will be higher than both the reactants and the product. अभी जो मैंने बोला है इसको हम एक बार डायग्राम से देख लेते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं A और B. दिस इज रिएक्टेंट A, दिस इज रिएक्टेंट B. ये एक्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे. सो देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ activation energy. Both molecule will absorb the activation energy and there will be a transition state, that is the activated complex. This is the activated complex, activated state. This activated state has high energy. जो activated state है इसकी energy बहुत high होगी as compared to the energy of both the reactants. दोनों reactants की जो energy है उसके comparatively जो activated state है उसकी energy बहुत ज़्यादा होगी. Then this activated state will get converted into product. So this is transition state theory. इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं. दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे. बीच में क्या होंगे, एक एक्टिवेटेड स्टेट की फॉर्मेशन होगी. उस एक्टिवेटेड स्टेट की जो एनर्जी होगी दैट विल बी हायर देन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स. इसको अगर हम रिएक्शन से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, A plus B gives rise to X. X is the activated complex and this will form the product. So this is the activated complex and these are the reactants. Now iodine rate constant के according to iodine theory, the rate constant is equal to K is equal to RT divided by N into H multiplied by K star. So यहाँ से T is the absolute temperature. This is the absolute temperature. R is the universal gas constant. So this is gas constant. N is the Avogadro number. So this is Avogadro's number. H is Planck's constant. This is Planck's constant. And K is K star, that is the equilibrium constant. Equilibrium constant for the formation of activated complex from molecules of reactant. हमने जो reaction लिखी थी A plus B gives rise to X star K and this is products. तो ये जो रिएक्शन है दिस इज द इक्विलिब्रियम, इसका क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, दैट विल बी K स्टार. सो यहाँ से जो K स्टार है, K स्टार दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन. प्रोडक्ट क्या है, ये जो रिएक्शन है इसमें X स्टार और रिएक्टेंट क्या है A और B. सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, जो del G star that is equal to del G star that is equal to minus RT natural log of K star. Now natural log of K star ln K star उसको हम क्या लिख सकते हैं, minus del G star divided by RT. और K star अगर एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, this will be e raised to power minus del G स्टार डिवाइडेड बाय RT. अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, A प्लस बी गिव्स राइज टू X स्टार, और यहाँ से हम इक्विलिब्रियम ऐसे शो कर सकते हैं.
सो जो k है, k अराइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग k क्या था, k was equal to RT divided by n into h into k star. So यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें, so k will be equal to RT divided by n into h. k star की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट करें, so that is equal to e raised to power minus del g star divided by RT. Now डेल्टा जी क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, डेल्टा जी स्टार क्या हो गया, डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एस स्टार. सो जो इक्वेशन थी दैट इज k इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई n इंटू एच इंटू ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी स्टार डिवाइडेड बाई आर टी. सो यहाँ पे डेल जी की अगर वैल्यू पुट करें, सो इक्वेशन क्या बनी, k इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई n इंटू एच e raised to power minus del h star minus t del s star divided by RT. So k will be this k, this is only k, so this k will be equal to RT divided by nh e raised to power minus delta h star divided by RT into RT को अगर ये जो टर्म है इसके पास लेके जाएंगे तो दिस विल बी e raised to power delta s star by r. So this will be equal to k. So अभी जो हमने k की वैल्यू कैलकुलेट की थी, so k क्या आया था, k is equal to RT divided by n into h e raised to power minus delta h star divided by RT into e raised to power delta s star divided by r. So this is k. So यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, this is Eyring equation. This is also known as Eyring equation. और ये जो थ्योरी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, this theory use physical properties of reacting molecules. It is known as theory of absolute reaction rate. So this theory is known as theory of absolute reaction rate. So this is also known as theory of absolute reaction rate. Now जो significance है इसके अंदर दो टर्म यूज हुई हैं, RT divided by NH और second one is e raised to power minus del G star divided by RT जो हमने इनिशियली लिखा था. So जो rate है, rate depend on this term. The factor this involves del G with negative sign. इसका मतलब है smaller is the value of del G, faster will be the reaction. जो रेट था, रेट हमने ऐसे एक्सप्रेस किया था, रेट इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई एन इंटू एच ई रेज टू पावर माइनस डेल जी स्टार डिवाइडेड बाई आर टी. दो टर्म्स हैं, वन टर्म इज दिस वन एंड सेकेंड टर्म इज दिस वन. सो रेट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस टर्म. और यहाँ से हमने क्या देखा है कि जो रेट है, रेट की जो एक्सप्रेशन है उसमें ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी स्टार है. सो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, मतलब इससे हमने क्या कंक्लूड किया है, smaller the value of del G star, that is the free energy of activation, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी del G star, smaller the value of del G star, faster will be the reaction. Faster will be the reaction. क्लियर. नाउ ये जो इक्वेशन हमने डेराइव की है इसको हम कंपेयर करते हैं अर्हेनियस इक्वेशन के साथ में, और वहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं, अभी जो हमने इक्वेशन डेराइव की है अगर उसको हम अर्हेनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, सो अर्हेनियस इक्वेशन क्या थी, k इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए बाई आर टी. सो यहाँ से और जो अभी इक्वेशन निकाली है उसमें जो k है दैट इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई एन एच ई रेज टू पावर डेल्टा एस स्टार डिवाइड बाई आर इंटू ई रेज टू पावर
माइनस डेल एच स्टार डिवाइडेड बाय आर टी। सो यहाँ से अगर कंपेयर करें दिस टर्म, अगर डेल एच को हम ई से कंपेयर करें, डेल एच स्टार दैट इज इक्वल टू ई ए। सो ये जो टर्म है वो कॉमन हो गई, दिस टर्म इज इक्वल टू दिस वन। सो यहाँ से जो ए है दैट इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाय एन एच into e raised to power del s star divided by r. So this is a, that is pre-exponential factor. So यहाँ से जो k था, k हम कैसे लिख सकते हैं? Now अगर एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से हमने कंपेयर कर लिया है pre-exponential factor. Now if activation energy is equal to enthalpy, so जो k था, k हमने क्या लिखा था? e raised to power del s star divided by r into r n h t into e raised to power minus delta h star divided by r t। ये जो इक्वेशन है इसको बस हमने थोड़ा इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? k, दिस वन इज कांस्टेंट, सो c into t into e raised to power minus del h star divided by rt। सो यहाँ से ये टर्म है, इसको अगर हम log लेते हैं तो बोथ साइड, सो दिस विल बी इक्वल टू ln k इज इक्वल टू ln c प्लस ln t माइनस del h star डिवाइडेड बाय rt। नाउ log लेने के बाद क्या मिला था? ln k इज इक्वल टू ln c प्लस ln t माइनस डेल एच स्टार डिवाइडेड बाय आर टी। अगर इस पूरी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सो दिस विल बी इक्वल टू डी ln k डिवाइडेड बाय डी टी। ये कांस्टेंट है, सो दिस विल बी 0 और ln t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाय टी माइनस डेल एच स्टार डिवाइडेड बाय आर। t raised to power minus 1, this is 1 by t, so t raised to power minus 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? t raised to power minus 1 और आगे भी -1, तो माइनस 1 by t स्क्वायर। मतलब क्या किया है? पावर को हमने आगे लिखा है, -1 पावर थी तो पावर को आगे लिख दिया, पावर में से -1 मतलब 1 है वो माइनस कर दिया है। सो दिस इज इक्वल टू -1 by t स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या आई? दिस इज इक्वल टू 1 by t प्लस डेल एच स्टार डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो ये क्या आ गया? दिस इज आर टी प्लस डेल एच स्टार डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वायर, दैट इज डी ln k डिवाइडेड बाय डी टी। दिस इज डी टी, टेम्परेचर कैपिटल टी, सो दिस इज डी टी। नाउ आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग k क्या था? यहाँ से हम इसको नोट डाउन कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1, k इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर यहाँ से इसका भी लॉग लेते हैं, सो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। यहाँ से इसका भी अगर डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सो डी ln k डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है सो ये 0 हो गया, e माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर। ये क्या है? 1 बाई टी, इसका डिफरेंशिएशन सेम वैसे ही क्या आ गया? 1 अपॉन टी स्क्वायर। सो दिस इज ई ए बाई टी स्क्वायर। सो डी ln k डिवाइडेड बाई डी टी, इस टर्म की जगह हम ये पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं। सो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन ऑब्टेन हुई? दैट विल बी इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 से क्या था? डेल एच स्टार प्लस आर टी डिवाइडेड बाई आर टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाई आर टी स्क्वायर। यहाँ से आर टी स्क्वायर दोनों से कैंसिल आउट हो सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू डेल एच स्टार प्लस आर टी, और डेल एच स्टार दैट इज द एंथैल्पी चेंज, दैट विल बी इक्वल टू ई ए माइनस आर टी, दिस वन। सो यहाँ से हमने क्या किया है? डेल एच स्टार को E के रिस्पेक्ट में एक्टिवेशन एनर्जी और एंथैल्पी के बीच में रिलेशन है उसको डेराइव किया है। नाउ कंपैरिजन विद कोलिशन थ्योरी, अगर हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को कोलिशन थ्योरी से कंपेयर करते
हैं तो उसमें हमें क्या ऑब्टेन होता है। कंपैरिजन विद कॉलिशन थ्योरी, तो कॉलिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो K है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर और द स्टेरिक फैक्टर इनटू A इनटू e रेज टू पावर EA डिवाइडेड बाय RT। और यहाँ से जो P है, अभी जो हमने इक्वेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग क्या था, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग RH डिवाइडेड बाय N RT डिवाइडेड बाय NH e रेज टू पावर डेल स्टार divided by R into e raised to power minus del H star divided by RT। So यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो क्या कर सकते हैं, जो P है अगर del H को हमने EA से रिप्लेस कर दिया, so this equation will be equal to this term। so यहाँ से जो P है, P will be equal to RT divided by NH into e raised to power del S star divided by R। so यहाँ से क्या मिला हमें कि जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है दैट इज रिलेटेड विद द एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस ओवर द कॉलिशन थ्योरी, मतलब जो एक्टिवेशन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है उसका क्या एडवांटेज है कॉलिशन थ्योरी के ऊपर। नाउ एडवांटेजेस ओवर द कॉलिशन थ्योरी, मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है वो कॉलिशन थ्योरी से किस तरह से बेनिफिशियल है, किस तरह से ज़्यादा एडवांटेज है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के, वो देखते हैं अभी। So transition state theory is more appropriate concept for the formation of activated complex। So this is मतलब जो transition state theory is more appropriate concept for the formation of activated complex than the collision theory, in which products form instantaneously। So transition state theory है that is a more appropriate concept than collision theory। Next is transition state theory। Transition state theory is thermodynamic in nature, is thermodynamic in nature, that is it explains about steric factor or probability factor of collision theory in terms of entropy of activation energy। मतलब जो स्टेरिक फैक्टर था और जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर था, स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर कॉलिशन थ्योरी के था, उसको किस टर्म में रिप्रेजेंट किया है, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एस स्टार, दैट इज एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। सो इस तरह से भी ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, दैट इज थर्मोडायनेमिक इन नेचर एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ओवर द कॉलिशन थ्योरी। Now next is effect of pressure on reaction rate। जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है उससे हम प्रेशर का इफेक्ट स्टडी कर सकते हैं हम रिएक्शन रेट के ऊपर। सो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने क्या डिस्कस किया था कि जो K है दैट इज इक्वल टू RT अपॉन NH इंटू K स्टार, और यहाँ से ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम, ये कहाँ से आया था, A प्लस B इज राइज टू X स्टार दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और यहाँ से क्या बना था, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई थी। तो सिर्फ इतना हमने कंसिडर किया है। सो K इज इक्वल टू RT डिवाइड बाई NH इंटू K स्टार, ये इक्वेशन है, इसमें अगर लॉग लेंगे बोथ साइड से, सो नेचुरल लॉग ऑफ K दैट विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ RT डिवाइडेड बाई NH प्लस नेचुरल लॉग ऑफ K स्टार। सो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन किया, d ln k डिवाइडेड बाई dt दैट विल बी इक्वल टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, क्योंकि प्रेशर की टर्म में निकालना है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई, सो दिस विल बी 0 प्लस d ln
K star divided by dP, that is del P at constant T. So this is del ln K divided by del P at constant T, that will be equal to del ln K star divided by del P at constant T. Now delta G star, that is equal to minus RT ln K star, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln K star is equal to minus del G star divided by RT, क्या था, ln K star that is equal to minus del G star divided by RT. del G star को क्या लिख सकते हैं, this is equal to minus del G को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा S स्टार माइनस T डेल्टा S स्टार डिवाइडेड बाय RT. सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ln K स्टार दैट विल बी इक्वल टू माइनस del H स्टार डिवाइडेड बाय RT प्लस del S स्टार डिवाइडेड बाय R. नाउ डेल्टा H है, डेल्टा H की हम एक इक्वेशन और पढ़ते हैं, दैट इज del E इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस P del V. सो del H की जगह हम ये पुट कर सकते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज V स्टार, दिस इज इक्वेशन कम्स आउट टू बी ln K स्टार दैट विल बी इक्वल टू माइनस del E स्टार प्लस P del V स्टार डिवाइडेड बाय RT प्लस del S स्टार डिवाइडेड बाय R. यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ln K स्टार विल बी इक्वल टू माइनस del E स्टार डिवाइडेड बाय RT, दिस इज माइनस P del V स्टार डिवाइडेड बाय RT प्लस del S स्टार डिवाइडेड बाय R. नाउ डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को पूरा विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर at constant temperature. So this will be equal to del ln K star divided by del P at constant T. So this will be equal to minus del V star divided by RT. बाकी ये टर्म है, this is a constant, this is constant. So del ln K star divided by del P at constant T, that will be equal to, ये जो टर्म है इसी का डिफरेंशिएशन होगा. सो del V स्टार डिवाइडेड बाय RT. सो जो फाइनल इक्वेशन है जो हमें ऑब्टेन हुई है, दैट इक्वेशन इज del ln K d ln K स्टार डिवाइडेड बाय del P at constant T is equal to minus del V स्टार डिवाइडेड बाय RT. So ये जो इक्वेशन है, this shows the rate constant of reaction increases with increase in pressure when the value of delta V star is negative. अगर ये वैल्यू है ये नेगेटिव होगी, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. del V स्टार है, if this is negative, so ये होल टर्म will be पॉजिटिव. और उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन है दैट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर. So rate constant है that will increase with increase in pressure, that is total volume of the reactants are greater than, यहाँ से इसका मतलब क्या है, del V star नेगेटिव का मतलब क्या है, total volume of reactant are greater than volume of activated complex. So volume of reactant is greater than activated complex, तो यहाँ से क्या आएगा, दिस टर्म विल बी नेगेटिव, और ये नेगेटिव होती है, ये जो पूरी टर्म है दिस विल बी पॉजिटिव. और इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है दैट विल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर. सो इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को हमने अर्गेनिस थ्योरी से और कॉलेशन थ्योरी से कंपेयर किया. उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द रिएक्शन रेट को डिस्कस किया है यूजिंग ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी.